Hi friends and dear students, welcome to my YouTube channel. I am Shalu Sharma, working as assistant professor in a nursing institute, and today I am here to teach you one of the important topic in pediatric nursing, that is essential newborn care. So let's start with the today's topic. Start with the definition. Essential newborn care is a comprehensive strategy to reduce the death of newborn through cost effective intervention. कब हमें कॉस्ट इफेक्टिव इंटरवेंशंस प्रोवाइड करनी है न्यूबॉर्न को? बिफोर कंसेप्शन, जब मदर ने कंसीव अभी किया भी नहीं है तब से हमें जो बेबी की केयर करनी है, जस्ट इन ऑर्डर टू मदर को हमें जो अपकमिंग मदर्स हमारे पास होंगी उन्हें गाइड करना है टू लुक आफ्टर हर हेल्थ, एंड आयरन एंड फॉलिक एसिड के सप्लीमेंट्स जो है वो ले सकते हैं, एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्रॉपर एंटीनेटल चेकअप्स करके, एंड इमीडिएटली आफ्टर द बर्थ एंड द पोस्टनेटल पीरियड. Next are the purposes of essential newborn care. First is to make sure that the baby is thriving and early detection of the problems or danger signs, helping the mother to meet the baby's basic needs such as warmth, feeding, infection prevention. ये जो है वो बेबी की बेसिक नीड्स हैं. बेबी को ब्रेस्ट फीड करना है विद इन 1 आवर एंड एडवाइज एंड एनकरेज करना है मदर को टू एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड द न्यूबॉर्न बेबी, and advising the mother and the family members about the danger signs and the baby care and treatment of key problems such as asphyxia, sepsis, or making plan for continuing care, immunization and growth monitoring, which is very much important in our department. Next are the components of essential newborn care. First is the prepare for baby's birth, immediate newborn care during first day, and newborn history and physical examination, care of newborn during the first 28 days, teach and counsel the mother and family about the newborn care. So let's discuss these one by one. First is prepare for baby birth. So baby birth, जैसे बेबी हमें पता है कि बेबी अभी डिलीवर होने वाला है. So let's take an example. Just imagine that we are in a labor room और हमारे पास एक mother है and she is ready to deliver a baby. So what's all the preparation we have to do to provide essential care to a newborn baby? As WHO say that 32% of the newborn death are just because of the infection. So in order to prevent the infection, so we have to kept some points in our mind that we have to wash hand properly, personal contact infection we have to avoid, and use the 3 infection prevention steps before the baby is born, and such as equipment, supplies and linen and surface all should be clean, and decontamination, cleaning, high level of disinfection and sterilization should be kept, and wear gloves, protect yourself from splashes or spills of blood, amniotic fluid, and wear eye protection, shoes or face mask and apron, etc. And next is the prepare the birth room. So we have to prepare the labor room, make sure that the room is warm and clean, and there should be proper lighting. The main motive क्या है हमारे पास लाइटनिंग का होने के लिए? जस्ट इन ऑर्डर टू चेक द स्किन कलर ऑफ द न्यूबॉर्न. बेबी का पिंक कलर है तो बेबी इज़ ओके. अगर बेबी का येलो कलर है दैट इंडिकेटिंग दैट बेबी मे हैविंग हाइपरबिलिरुबिनेमिया जॉन्डिस, और बेबी का ब्लू कलर है दैट इंडिकेटिंग द साइनोसिस. So next is keep records. We have to maintain proper recording and reporting. So newborn जो records हैं वो हमें properly maintain करने, उसमें क्या क्या चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं, जैसे मोड ऑफ डिलीवरी क्या था बेबी का, जेस्टेशन एज क्या है, टर्म डिलीवरी है, प्री टर्म, पोस्ट टर्म, और वेट ऑफ द बेबी एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, अपगार स्कोरिंग क्या थी, वो सब चीज़ें, एंड इम्यूनाइजेशन कार्ड एंड मदर्स रिकॉर्ड ऑफ एंटीनेटल लेबर एंड डिलीवरी. Collect the equipment supplies such as medicine for the birth room and the immediate postnatal care. Next component of essential newborn care is immediate newborn care. Immediate newborn care is based on the knowledge of midwife of his transitional requirements and capabilities, and chance of heat loss by convection, conduction, radiation and evaporation. बेसिकली जब भी हम बेबी का केयर की बात आएगी या इमीडिएट केयर की बात आएगी तो मेन तो हमारे पास यही होता है, जैसे बेबी को रिसीव करते तो मेन चीज़ तो ये है हमारे पास कि बेबी का वार्मथ हमें प्रॉपर्ली मेंटेन करना है. सो जस्ट इन ऑर्डर टू दैट वी हैव टू minimize the chance of heat loss by the various mechanism of heat losses such as convection, conduction, radiation and evaporation. So we will discuss these here. Mechanism of heat loss, 4 ways for a newborn to lose heat, that is convection. फॉर एग्जाम्पल जैसे बेबी हमने रिसीव किया है या बेबी डिलीवर हो चुका है और उसके हमने वहाँ पे फ़ैन ऑन कर दिया, तो फ़ैन में क्या है थ्रू द एयर करंट के थ्रू क्या है बेबी का बॉडी से हीट लॉस हो रही है. और अगर रेडिएशन है वहाँ मतलब फॉर एग्जांपल अगर वॉल्स कूल हैं
तो उन वॉल्स के रेडिएशन के थ्रू जो है वो बेबी की बॉडी से हीट लॉस हो रहा है, इवेपोरेशन। अगर बेबी बाथ का प्रोसीजर हमने दिया है, बेबी को बाथ करवाया है और बेबी को प्रॉपर्ली ड्राई नहीं किया है या इमीडिएटली अभी कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी हमें जल्दी जल्दी से बेबी को ड्राई करना है। अदरवाइज जो बेबी के जो वाटर होगा बेबी की स्किन के ऊपर, तो वो वहाँ से वाटर वेपर्स के फॉर्म में बेबी की बॉडी से हीट को लॉस कर देता है। नेक्स्ट इज़ द कंडक्शन। तो फॉर एग्जांपल किसी के हैंड कोल्ड हैं, कोई स्टैथो हम बेबी को टच करवा रहे हैं उसको असेस करने के लिए, तो हमारे हैंड्स कोल्ड हैं, तो वो हमारे हैंड के थ्रू भी बेबी की बॉडी जैसे टच करेंगे हम, तो वहाँ से थ्रू द कंडक्शन मैकेनिज्म के थ्रू जो बेबी की बॉडी से हीट लॉस हो जाती है। नेक्स्ट इज़ द इनिशियल केयर। इनिशियल केयर और भी फर्दर जो है वो हम कंपोनेंट्स डिस्कस करेंगे इमीडिएट न्यूबॉर्न केयर के। तो फर्स्ट हमारे पास इनिशियल केयर, यहाँ पे क्या होगा, एज द बेबी इज़ डिलीवर्ड, जैसे बेबी डिलीवर उसके हेड को हम लेंगे और उसको प्रॉपरली वाइप ऑफ करेंगे, सक्शन करेंगे उसके नोज़ और माउथ को अगर उसमें म्यूकस की प्रेजेंस हमें लग रही है, और नोट द टाइम ऑफ द बर्थ एंड सेक्स ऑफ द बेबी and clearing the airway, which is very much important step in immediate newborn care, just in order to maintain the proper respiratory rate of the baby. So we have to hold the baby head lower than the body and turn to side for the drainage, and wipe off the baby's face and fluids from the nose and the mouth, and we have to suction the nasal and the oral passages with the help of soft rubber bulb, syringe or mucus sucker. और अगर हमें लगता है कि मैकेनिकल सक्शनिंग की नीड वहाँ पे है तो वो भी हम करेंगे, बट दैट इज़ ओनली इंडिकेटिंग इन केस ऑफ म्यूकोनियम एस्पिरेशन का अगर वहाँ पे चांसेस बनते हैं तो। नेक्स्ट इज टू डिसाइड इफ बेबी नीड्स रिससिटेशन। तो हमें वो चेक करना है बेबी का रेस्पिरेटरी रेट, उसका ब्रीदिंग पैटर्न हम चेक करेंगे। अगर उसका जो रेस्पिरेटरी रेट है वो लेस देन 30 ब्रीथ्स पर मिनट होगा और बेबी अगर गैस्पिंग कर रहा है, दैट मीन्स देयर इज़ अ नीड फॉर रिससिटेट दैट न्यूबॉर्न बेबी। Quickly we have to clamp and tie and cut the cord, leaving the stamp at least 10 cm long, and put the baby on the flat warm surface and just start the resuscitation. Next is clamping and cutting the cord. Tie the cord securely on two places. First tie जो हम place करेंगे that is 2 finger away from the baby's abdomen, and second tie जो होगा वो 4 fingers away from the abdomen, and use a small gauze piece to cover the part of the cord to prevent the splashing of the blood while cutting the cord, and cut the cord between the ties and do not put anything on the cord stem. Next is to dry and stimulate the baby. We have to rub up and down the baby's back using the clean warm cloth and assess the baby's breathing and the color. We have to check the face and the chest for the color. अगर वो pink color का है, that means that indicating a good sign of adequate breathing and circulation. But if that is in blue color, अगर बेबी का टंग, लिप्स और ट्रंक जो ब्लू कलर के होंगे, that indicating the sign of lack of oxygen in the blood, and bluish color only on the hands and the feet, present for 1 to 2 days after the birth normal. Then preventing the infection, we have to use the proper aseptic technique, and maintaining the body temperature. We have to keep the baby body warm, wipe off the dry the baby, bodily contact with the mother, and maybe place the baby under the rain warmer just to maintain the body temperature of the baby and provide the warm blanket to the newborn. Prevention of the heat loss, remove the wet towel or the cover with the warm blanket and skin to skin contact with the mother. Keep the baby mother's chest as soon as the baby is born, and breastfeeding within the first hour. That is very much important. Then preventing from the injury, we have to handle the baby gently. उसको प्रॉपर्ली होल्ड करना आना चाहिए हमें, और हमें असेस करना है बेबी की कंडीशन को। अब गार्ड स्कोरिंग प्रॉपर्ली चेक करना है, वेट चेक करना है बेबी का, वो गेन कर रहा है नहीं कर रहा है, और क्लोथिंग का है, आई केयर है, उसमें प्रॉपर्ली करेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द आइडेंटिफिकेशन। नेम बैंड जो होगा वो हम बेबी को प्लेस करेंगे, एंड रिमेन अनटिल गेट डिस्चार्ज। जब तक वो डिस्चार्ज हो तब तक हम उसको वैसे ही बेबी का फिट के साथ जो है वो बैंड को टाई करके रखेंगे। एंड स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट विद द मदर वी हैव टू प्रोवाइड एंड हैव द मदर टू स्टार्ट द ब्रेस्ट फीडिंग। क्लोज ऑब्जर्वेशन हम करेंगे एटलीस्ट 4 to 8 आवर्स के लिए। एंड इफ़ एनी एक्सेस म्यूकस है उसके माउथ में तो वो भी हमें चेक करना है, कोई ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है अम्बिलिकल कॉर्ड से, दैट वी हैव टू चेक। एंड आर्ली टेम्परेचर को हमें प्रॉपर्ली चेक करते रहना चाहिए, जस्ट इन ऑर्डर टू स्टेबलाइज द टेम्परेचर ऑफ द बेबी। एंड एडमिनिस्टर द इंजेक्शन विटामिन के विच एक्ट एज ए एंटीकोगुलेंट। एंड थर्ड component of essential newborn care is newborn care during the first day. So we have to assess the baby for the general conditions, and then breathing pattern of the baby, warmth, check the temperature of the baby and provide the proper warmth to the baby, and color of the newborn हमें check करना है, bleeding कहीं से तो नहीं हो रही है, and give normal newborn care, keep the baby warm and support the breastfeeding, eye care, cord care and the skin care.
other care for any problem or any need, so we have to assess the newborn physical examination हमें करना है, common newborn problems को assess करना है, and immunization provide करनी है बेबी को. Next, fourth component is newborn history and physical examination. So we have to take the history of the newborn. यहाँ पे और कोई हिस्ट्री पास तो नहीं होगी, सिर्फ जो बर्थ हिस्ट्री बेबी की होगी वही यहाँ पे आएगी कि बेबी का मोड ऑफ डिलीवरी क्या था, बेबी को एस्फेक्सिया तो नहीं हुआ था इमीडिएटली, कोई रिससिटेशन की जरूरत तो नहीं पड़ी थी, तो वो सब चीज़ें हम इसमें मेंशन कर सकते हैं. एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द फिजिकल एग्जामिनेशन इज जस्ट टू डिटेक्ट द कॉन्जेनिटल अनॉमलीज तो नहीं है बेबी को, या बेबी को कोई बर्थ के टाइम पे कोई इंजरी तो नहीं हो गई, बेबी इल तो नहीं है, बेबी का लेंथ हेड सर्कमफ्रेंस कहीं ज़्यादा तो नहीं है, ठीक है. तो उसके वाइटल साइंस हम प्रॉपर्ली चेक करते रहेंगे. एंड वी हैव टू आइडेंटिफाई द नीड्स ऑफ द प्रॉब्लम, जो भी उसको लगेगा वो हमें असेस करना है. देन फिफ्थ कंपोनेंट है डेली असेसमेंट एंड द केयर ऑफ द बेबी ड्यूरिंग 28 डेज. फर्स्ट इज द ऑब्जर्वेशन. वी हैव टू ऑब्जर्व द टेम्परेचर ऑफ द बेबी, बेबी का स्किन कलर, बेबी का वेट इंक्रीज हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सब चीज़ें जो है वो हमें ऑब्जर्व करनी है. देन जनरल केयर बेबी को प्रोवाइड करनी है, वार्मथ, स्लीप, वाइटल साइंस चेक करने हैं, लव एंड अफेक्शन बेबी को प्रोवाइड करना है, वेरी मच इंपॉर्टेंट. हमें केयर गिवर को गाइड करना है, मदर को गाइड करना है कि उसको बेबी को प्रॉपरली लव एंड अफेक्शन जो है वो देना है, बेबी को फील होना चाहिए, एक मैटरनल बॉन्डिंग जो उसके साथ बननी चाहिए, और बेबी का वेट प्रॉपरली इंक्रीज हो रहा है नहीं हो रहा है वो भी हमें चेक करना है, ठीक है. तो नियर अबाउट 10 to 15 ग्राम पर डे के अकॉर्डिंग जो है जो बेबी का वेट इंक्रीज होता है जो बेबी प्रॉपरली ब्रेस्ट फीड करते हैं. प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शन, स्किन केयर, हेड माउथ आई केयर एंड केयर ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड. जेंटल केयर, बाथिंग बेबी को प्रॉपरली प्रोवाइड करनी है और अर्ली एंड एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड करना है. एलिमिनेशन के पैटर्न को प्रॉपरली चेक करना है, बेबी कितने टाइम पे जो है वो यूरिन पास कर रहा है, कितना टाइम स्टूल पास कर रहा है, कंसिस्टेंसी क्या है उन चीज़ों की. देन इम्यूनाइजेशन, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द बेबी, न्यूबॉर्न डेंजर साइंस एंड प्लान फॉर द फॉलोअप विजिट्स. लास्ट कंपोनेंट है हमारे पास एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर का, दैट इज टीच एंड काउंसिल द मदर एंड द फैमिली अबाउट न्यूबॉर्न केयर. सो पहले ये सब चीज़ें हमें आनी चाहिए, तभी हम अपने जो हमारे जो केयर गिवर्स हैं, जो न्यूबॉर्न बेबी के जो मदर हैं, उनको हम हेल्थ एजुकेट कर सकते हैं, ठीक है. तो हेल्थ एजुकेशन इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट इन आवर नर्सिंग डिपार्टमेंट. सो वी हैव टू मेक आवर सेल्फ कैपेबल सो दैट वी कैन मेक अदर्स कैपेबल टू डू द केयर ऑफ द न्यूबॉर्न. सो वी शुड टीच देम, काउंसिल देम रिगार्डिंग द बेबी ऑब्जर्वेशन क्या है, बेबी को क्या क्या चीज़ें हमें ऑब्जर्व करनी है, बेबी का टेम्परेचर ऑब्जर्व करना है, स्किन कलर ऑब्जर्व करनी है, बेबी का हाइजीन हमें प्रॉपर्ली मेंटेन रखना है, बेबी को इन्फेक्शन से कैसे प्रिवेंट करना है, बेबी का ब्रेस्ट फीडिंग का क्या पैटर्न होना चाहिए, बेबी का ब्रेस्ट फीड कैसे करना है, कैसे हमें असेस करना है कि बेबी का जो ब्रेस्ट फीडिंग की प्रॉपर्ली कंज्यूम करे, वट आर द एडिक्वेट, हाउ वी यूज टू चेक द एडिक्वेसी ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, बेबी का एलिमिनेशन पैटर्न क्या होना चाहिए, ये सब चीज़ें हमें मदर को टीच करनी है और काउंसिल करनी है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक. और अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो, देन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन.